Hello everyone. Today in this class we will see the use of continue statement in Java. Continue statement is used to bypass the remainder of the code for some condition for a particular loop from a certain point but continue the execution of the loop. This is a very big definition of continuous statement. सिंपल टर्म्स में अगर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं तो अगर एक कोई लूप है हमारे पास, जैसे कि प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में इफ़ आई हैव ए लूप लाइक दिस and I am printing out system.out.println I. Clear? So in this program the output will be 0, 1, 2 and 3. But if there is a condition like if I is equals to 2, continue. Now what do you mean by continue is it will skip the remaining portion of the loop. So the control will now go to the starting point of the loop. जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट आएगा आपका कंट्रोल लूप के स्टार्टिंग में चला जाएगा. ये वाला पार्ट जो है रिमाइंडर, दैट इज रिमाइंडर और द रिमेनिंग कोड, remainder or remaining code will be skipped. So the output now will be, आउटपुट क्या आएगा इस केस में? अब आपका आउटपुट आएगा 0, 1, 2 पे जैसे ही आएगा, इसमें कंटिन्यू लिखा है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी. अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3. तो आंसर विल बी 0, 1 एंड 3. अगर इस कंटिन्यू की जगह हमने यूज़ किया होता ब्रेक, इन दैट केस द कंट्रोल विल गो टू द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप. कंट्रोल आपका यहाँ पे कहीं पे आ जाता. ब्रेक के केस में आउटपुट आता 0, 1. So this is the basic difference between continue and break statement. If there is a question that what is the difference between continue and break, after explaining with the definition, you can use same program and show that if there is a continue then the output is like this, and if you have used break the output will be like this. Now we will see how labeled statements works in continue. Just like labeled break, there are also labeled continue statements. It is also used as a go to statement. I will explain it with an example. Suppose I created a loop with the label outer. There is one loop which is inside the outer loop. And I am printing out the value of I plus j. Now if I have a condition like if I is equals to j, then continue. See, if I have used simple continue without any label, the continue statement will take it to here. करंट लूप की जो स्टार्टिंग होगा कंटिन्यू वहाँ पे लेके जाएगा. बट इफ आई यूज लाइक दिस कंटिन्यू आउटर, then the control will go to this outer loop. This is how labeled continue works in Java. You can practice this
in your system. I have also shown the use of labeled continue in the following section. You can watch the demonstration of continue and label continue in the remaining part of the video. We will see the implementation of continue and labeled continue statements in Java. प्रीवियस क्लास में हमने ब्रेक स्टेटमेंट्स का पढ़ा था. ये प्रोग्राम हमने यूज़ किया था ब्रेक स्टेटमेंट्स के लिए. सेम प्रोग्राम को अब हम देखेंगे कि जब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है. कंटिन्यू में पार्ट ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इन द लूप गेट्स स्किप्ड, whereas in break the complete loop will get exit. So देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रोग्राम. सिमिलर प्रोग्राम लिखा है, बस यहाँ पे अब मैंने क्या कंडीशन लिखा है कि अगर जब i2 होगा तो हमें कंटिन्यू करना है. और इस कंटिन्यू का मतलब है कि जो रिमेनिंग पार्ट है लूप का वो नहीं चलेगा. दैट मीन्स i जब 2 होगा तो प्रिंट नहीं होगी ये वैल्यूज़, बट जो आपका लूप है वो कंटिन्यू रहेगा. सो इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करते हैं अब हम, और जब रन करके देखेंगे तो देखिए i0 i1 और जब i2 था तो ये वाली स्टेटमेंट स्किप हो गई और फिर i3 प्रिंट हुआ. सो ये एक डिफरेंस है ब्रेक और कंटिन्यू. अगर यहाँ पे ब्रेक लिखा होता तो आप देखते कि प्रोग्राम आपका यहीं पे ही ब्रेक हो जाता, फर्दर 3 प्रिंट नहीं होता. देखिए ये एक बेसिक डिफरेंस है ब्रेक और कंटिन्यू में. अब जैसे हमने लेबल्ड यूज़ किए थे ब्रेक के टाइम पे, वैसे ही लेबल हम कंटिन्यू में यूज़ कर सकते हैं. सपोज अगर मैं इसको एक लेबल दे देता हूँ आउटर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटिन्यू आउटर. सो दिस विल वर्क जस्ट लाइक सेम एज द सिंपल कंटिन्यू स्टेटमेंट. 0 1 and 3. इसमें एक और हम लूप बना सकते हैं. सपोज इनर, उसमें हमने बनाया इंट एक और लूप हमने बना दिया है इनर, और उसमें हम j की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं और देख रहे हैं अगर i की वैल्यू 2 होगी तो पहले मैंने करा है कंटिन्यू आउटर, मतलब i की वैल्यू 2 होते ही सीधा यहाँ से आपका जो कंट्रोल है वो दोबारा यहाँ पे चला जाएगा. देखिए जब i की वैल्यू 0 है तो j चला 0 1 2 3 बार. i की वैल्यू प्रिंट हुई 0 स्टेटमेंट से. फिर जब i की वैल्यू 1 थी तो j चला 0 1 2 i1. फिर जब i की वैल्यू 2 हुई तो इसके बाद इनर लूप ना चल के इसने कंटिन्यू करा है आउटर पे. दैट मीन्स j की वैल्यू चली 0 1 2 4 i3. अगर इसी को हमने इनर किया होता तो उस केस में डिफरेंट आउटपुट आएगा. उस केस में देखिए आउटपुट कुछ ऐसा है कि जैसे ही i की वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो नहीं रही है, बार बार वो सेम करेगा इसमें. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज कंटिन्यू एंड लेबल्ड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स इन जावा. Thank you for watching the video. Please subscribe to the YouTube channel for more tutorials on Java and other computer science related subjects. Thank you.